तो जैसे अंकित और वीर और क्रिस ज्वाइन किए बहुत दिन के बाद, तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि आप लोग को आई वॉज ऑब्वियसली मिसिंग यू गाइज इन द क्लास, और आप लोग ही मेरा गुरु दक्षिणा हो, राइट? जब बच्चे क्लास में होते हैं तो देन आई फील कि हाँ, आई एम वैल्यूड एज अ टीचर। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो लोग भी रेडी हो अपना दो दो वर्ड सुनाना शुरू करेंगे, बाकी बच्चे आते जाएंगे, फिर वो दे विल कंटिन्यू, है ना? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ सोनल। तो जो लोग Good रेडी morning. हैं शुरू करें। गुड इवनिंग बेटा। पहले तो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलिए, जो लोग रेडी हैं, चलिए तो वीर और क्रिस से शुरू करते हैं। Yes, sir. Sir, today my two words are tree and river. My first word is tree. Hmm. A tree has root, trunk, branches, and leaves. Tree gives us oxygen to breathe. Hmm. Birds build nests on the tree. The tree gives us fruits and shade. We should plant more trees to save nature. My second word is river. A river flows from mountain to sea. Many villages and cities are built near rivers. People use river water for farming. Hmm. Rivers are home to fish and other animals. A clean river makes the environment healthy. Hmm. वेरी नाइस। वीर कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, sir. So Sir, वीर, आप today. सॉरी बेटा, आप बिफोर यू स्टार्ट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड रिसेंटली, तो आज शनिवार है, तो शनिवार को एवरीबॉडी शेयर्स 2 वर्ड्स। जो आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ना कि दो दो वर्ड डेली सीखना है, तो एक वीक में आपका 14 वर्ड्स होगा, उसमें से कोई 2 वर्ड आप शेयर करेंगे। अभी सबको अपना 2 वर्ड शेयर कर रहा है, सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स वर्ड्स एंड फॉर यू टू शेयर व्हाट यू हैव लर्न इन द वीक। ठीक है? तो हर कोई अपना 2 वर्ड सुना रहा है, आप कोई 2 वर्ड चूज करेंगे, उससे सेंटेंसेस बना के सुनाएंगे। ठीक है? अमरजीत जी, आपने जवाब आपके लिए था, प्रकाश आपके लिए भी, जो लोग लेट से ज्वाइन किए। ठीक है? तो चलिए, अभी बेटा प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Sir, today my two words are ripple and glimmer. Hmm. My first word is ripple, which means small waves of water. Hmm. My sentences are a ripple moved across the pond. Hmm. Uh, the fish made ripples in the water. Hmm. She watched ripples in her grass. Hmm. A ripple touched the river bank. Hmm. So my second word is glimmer, which means a soft light. Hmm. The candle gave a glimmer in the darkness. He saw a glimmer of light. Hmm. The lamp had a weak glimmer. Hmm. She felt a glimmer of hope. That's all, sir. बहुत बढ़िया। So thank you again, Veer and Chris, for joining the class after a break, and well, job well done. बहुत बढ़िया। चलिए, अंकित सुनाइए कुछ। Hello, sir. बोलो बेटा। So today's my two words are sensible and affection. Hmm. First, sensible. That sentences are: be sensible and wear a jacket. It's sensible to save money. Hmm. She made a sensible decision. He is a sensible person. Hmm. Eating healthy is sensible. And second, affection. That sentences are: she shows affection to her pets. Hmm. He has great affection for his family. Hmm. The child craves affection from her parents. Hmm. Their affection
for each other is clear. Hmm. She gives me a lot of affection. Hmm. That's also thank you. बहुत बढ़िया. चलिए तो चलते हैं. So again, Ankit, Chris, and Veer, you guys came back after a break, and it really felt nice. मतलब टीचर के लिए इससे अच्छा क्या होता है? टीचर का सबसे बड़ा पूंजी होता है उनके उसके बच्चे. तो when you guys join back, it really feels good. बहुत बढ़िया. चलिए प्रिया, बोलिए बेटा. Good morning, sir. प्रेमी बेटा. Today my two words are advice and education. Hmm. My first word is advice. Hmm. Don't advise me. Hmm. Don't forget your parents' advice. Hmm. Don't hear you advise anyone. Hmm. Both friends are talking advise each other. Hmm. We will be advise each other. We will advise each other. We will be नहीं लगाएंगे, है ना? Hmm. Okay, sir. Hmm. I advise you to wake up early in the morning. Walk up. Hmm. I advise you to do your work carefully. Hmm. And my second word, education. Hmm. He has a strong interest in the field of special education. Hmm. My father is dedicated to his education. Hmm. He planned his education life very carefully. Hmm. Education helps us to learn. Hmm. Education helps us get a good job. Hmm. We get knowledge from education. Hmm. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. Veer and Chris, आप लोग चाहें तो हाथ नीचे कर लें, unless you have something more to share. Okay. चलिए बाकी जो लोग रेडी हों हाथ खड़ा करेंगे, so that अभी आदर्श नगर से भी लोग जा रहे हैं और कन्हई से भी बच्चे हैं. जो जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे और शेयर करेंगे अपना दो वर्ड्स. और अमरजीत जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अमरजीत जी, आप म्यूट पे चले जाइए, आपका थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. जब आप बोलेंगे उससे मैं अनम्यूट करेंगे. चलिए, हु इज रेडी, हु इज नेक्स्ट. और कोशिश ये करेंगे कि हर कोई खुद से एडवांस में हाथ खड़ा कर दे, ठीक है, ताकि सबको नाम पुकारने, सबको याद दिलाने में टाइम वेस्ट नहीं हो. चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट. सोनल, आदर्श नगर से बच्चा लोग, प्रकाश झा, कन्हई. देखिए, तो मेरा हम उठते हैं 5:30 बजे मेरे सुबह में आप लोग क्लास के लिए. अभी मेरा बज रहा है 7:30. तो मैं ऐसे भी आधे नींद में. आप लोग इतना वेट कराइएगा तो हमको ऐसे भी नींद आ जाएगा, झपकी लेने लग जाएंगे. फिर मेक श्योर दैट योर टीचर डजंट फॉल asleep. सोनल, Sir, बोलिए. 2 minutes. ओके ओके, ठीक ठीक ठीक. नहीं, सोनल आप बहुत फटाफट बोलते हैं, इसलिए मुझको लगा कि आप रेडी होंगे. कोई नहीं. चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट. जो भी इस फेर में है कि कोई और बोलेगा मेरा नंबर नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, सब नंबर सबका आएगा, इसलिए तैयार हो जाइएगा.
कौन बोलना चाहे कन्हैया से, बोलिए। बोलिए भाई, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बोलिए। Sir, today my two words are struggle and burden. Many people struggle to achieve their goals. She had to struggle to find a job. Burden. She was burdened with responsibilities. All of us are burdened with any of the responsibilities we have. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए, सोनल ने फटाफट अपना 2 वर्ड सुना दिया। बाकी लोग, अनमोल के साथ और कौन कौन है उधर? जब हम छोटे थे, मतलब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तभी क्या बात है, मेरे एक टीचर थे जो क्लासरूम में सो जाते थे कभी कभी। तो हमको लग रहा है कि आज हम वही टीचर बनने वाला है जो क्लासरूम में सो जाएगा, अगर आप लोग इतना टाइम लेंगे तो। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? प्रकाश झा, आदर्श नगर से बच्चा लोग। हाँ, बोलिए। I have no special words, but I have I have like fewer words. Like 2 days back, I'm sharing with you some incidents. Right. Like I'm working as well as an accounts executive. Right. Okay, and then 2 days back, I have some meetings in this, and I understand what are they are talking about in meetings and what is the problems and say, and that time I'm not matlab, I always fear in that how we talk in meetings, like in English communication, but I understand what are they saying and what is the problem, and that and after the meeting we sort out all the problems, but how can we deal with that situation? I have some special reason for that. Yeah, that is okay, and that is understood. So see, that is what we are all here for. Even it's not like I'm teaching anybody anything. Okay, it's that when I'm here in this class, I get to learn a lot of things from all the participants in the class. So basically, we all have the same motive of learning from each other. That is what essentially this class is meant for. Okay. So there's no syllabus, no curriculum that we follow, right? It's all about how do we practice the language more and more, so that it becomes something very normal and naturally coming to us. I have always the same issue, but I understand in English and write and read and everything like that. But I have always know what the people think about me and what I'm saying. No, so that fear of what people think about me has to be knocked off. See, nobody has enough time to think about us, unfortunately. Okay, and none of us are superstars. We are all normal people. So nobody hardly pays any attention to what we do right versus what we do wrong. I mean, unless we do something seriously wrong. Nobody is interested in knowing about us. So we are good as long as we do what we do. मतलब दूसरों बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में, किसको कौन गलतियां निकालेगा. People don't really have time. And I mean, if you already know, right? लोगों के पास टाइम कहाँ है? किसके पास टाइम है? मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है. किसी के पास कोई टाइम नहीं दूसरों के लिए. अपना भला हो जाए वही बहुत है. Okay, but we have to stop.
doubting ourselves. हाँ, दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑल ऑफ अस हैव। मतलब आप किसी मीटिंग में जाएंगे, आप क्यों नहीं वहां पार्टिसिपेट करते हैं? बिकॉज यू ऑलवेज डाउट योरसेल्फ। आपको लगता है अच्छा सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, सामने वाला कुछ गलतियां निकाल देगा। क्लास में 10 बच्चे होते हैं अगर, या 20 बच्चे हैं अगर क्लास में पढ़ाई हो रही है स्कूल में, वहां पे 2 बच्चा टीचर के साथ बात कर रहा होता है, जवाब दे रहा होता है, बाकी 18 बच्चे इसी भ्रम में होते हैं कि अरे कुछ गलती निकल गया तो टीचर गुस्सा होंगे। एंड व्हेन दैट हैपेंस वी एसेंशियली ब्लॉक आवर चांसेस टू लर्न। तो मतलब अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये है कि हम लोग दूसरों के बारे में सोच के अपने सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो उस चीज को निकाल दीजिए मन से, ठीक है? क्योंकि वो जो है ना, वो दैट्स द बिगेस्ट बैरियर इन ऑल ऑफ आवर लाइफ्स एक्चुअली। I always something like मतलब मैं इस चीज को लेकर मेरा कई अपॉर्चुनिटीज मुझे मिस हुई है, लेकिन everything, लेकिन मैं मतलब I'll do what I do, but I am doing great what in our field like accounts, everything I know, especially in English language. In speaking we always mistake. हाँ, तो मतलब अभी के लिए तो मूल मंत्र ये है कि आप उस चीज को मन से निकाल दीजिए। जिसको अंतर पड़ता है पढ़े, जिसको नहीं पड़ता नहीं पढ़े। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, यू विल से थिंग्स इन इंग्लिश इन विद व्हाटएवर कैपेसिटी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मतलब इस देश में जहां हम रहते हैं, अमेरिका में, यहाँ पे 90% लोगों का इंग्लिश का ग्रामर का बारात निकला हुआ है। पीपल डोंट एक्चुअली नो व्हाट इज ग्रामर। लेकिन अब अंग्रेज है तो अंग्रेजी बोलेगा, बोलता है बेझिझक बोलता है। तो हमको भी वही अंग्रेज बनना है कि भाई ठीक है, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलेंगे, गलती हुआ देखेंगे। मतलब वंस यू टेक दैट फियर आउट, राइट, आप देखेंगे कि मतलब जो बोलते हैं ना हिंदी में, आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखेगा अपने अंदर। तो टेक दैट फियर आउट, गलती होगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नो वरीज। मतलब एक बोलते हैं ढीठ बोलते हैं हम लोग क्या बिहार में, एकदम ढीठ बन जाना। ठीक है, जिसको गलती लगता है लगने दीजिए, मेरे को अंतर नहीं पड़ता 2 रुपये का भी। ठीक है, एंड यू मैं मतलब सारा समझ लेता हूँ, बोल लेता हूँ, मैं प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूँ, सारी चीजें जो एक्चुअल में होती हैं, लेकिन बस वही बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, दैट्स ऑल। हाँ, तो उस हेजिटेशन का रामबाण यही है कि ढीठ बन जाइए। हम अपना बात रखेंगे, सामने वाले को समझ में अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं। मतलब ऑब्वियसली किसी को हर्ट नहीं करना है, बट अपनी बात रखने के लिए सोचना नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या गलती हो जाएगी। बिकॉज दैट फियर टेक्स अवे योर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आपको लगेगा कि उसी डर के चक्कर में जो चीज आप जानते भी होंगे कि आप सही बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, उसके आप बोलेंगे नहीं, एंड देन wherever you were supposed to get the credit, you will not get the credit. ठीक है, ओके, चलिए, नो वरी सर। चलिए, आदर्श नगर से कौन बोलना चाह रहे हैं? सर, हेलो सर, माय नेम इज अनमोल। बोलिए अनमोल। Words are fear and hate. First is fear. The little child was full of dirt. Riya felt fearful before the big. Saved the dog. He was fearful the territory. The movie was so scary that everyone be careful. And second one is excited. I am excited to go to the zoo tomorrow. She was excited to get a new book. The children were excited to play in the park. We felt excited on our birthday.
He was excited to see his best friend after a long time. That's all, sir. बहुत बढ़िया। और कौन है आदर्श नगर में? ओके, चलिए तो अमरजीत जी के पास चलते हैं। Hello. Good evening. Good morning, sir. गुड इवनिंग। Good morning, sir. Today my two words are my first word student, second word teacher. First words, I am good student. Always believe in your abilities. Hard work today, build success tomorrow. Stay precious, keep learning every day. Mistakes are a step towards important. Discipline and focus lead to achievement. Teachers shape the future with knowledge. A good teacher inspires every student. Teaching is a noble profession of service. Patience and guidance define a true teacher. Teachers light the path to success. That's all. Thank you. बढ़िया। तो आपने पहले बॉल पे चौका मार दिया है, तो that's what it is. एक बार मन के अंदर का डर निकाल देंगे तो देखेंगे फिर आपको मजा आने लगेगा। ओनली थिंग दैट आई मीन व्हाट आई नोटिस्ड अमरजीत जी वाज कि आप जब बोल रहे थे तो यू वर नॉट इन अ हरी, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप जब बात कर रहे हैं when you're creating your sentences, when you're trying to form an opinion, if you say that with lot of patience, आप देखोगे कि आपको you get enough time to think about things and you're able to frame your sentences better. तो उस फॉर्मूला को हमेशा लगाइएगा। Don't be in a hurry. आप देखोगे कि you are able to do a much better job with that patience actually. चलिए बहुत बढ़िया। Let's go to अतुल मिश्रा 100। आज अतुल मिश्रा सेंचुरी मारने वाले हैं, बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are shooting and battle. Alex started shooting. Do you hear someone shooting? You could say, I am on the troubleshooting squad. को COULD could बोलेंगे, could नहीं, ठीक है। बोलिए। Big shots are only little shots who keep shooting. The problem with troubleshooting is that troubleshoot back. Troubleshooting. Okay. The soldiers fought bravely in the battle. He lost his battle with Kankar. It was a thorough legal battle. Life is a daily battle for some people. He battling to stay awake in class. He is battling to stay awake in the class. They battled hard to win the match. हो गया सर। हो गया। ओके, तो देखिए आपका सेंटेंस तो बनता है, सेंटेंस बन रहा है, अच्छा बन रहा है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू द प्रोनाउंसिएशन राइट। उच्चारण जो होता है ना, वो उसके ऊपर पकड़ बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी यहाँ पे देखिए
COULD, कुल्ड बोलेंगे तो हो गया, उसके साथ गड़बड़ी। कुड बोलेंगे तो उसका पावर दिखेगा। तो ऑलवेज व्हेनेवर सी, जरूरी नहीं है कि हम 10 सेंटेंस बोलें, 20 सेंटेंस बोलें, बट जितना बोले उसमें कोशिश ये करेंगे हम लोग हमेशा कि हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का उच्चारण सही से करने की कोशिश करेंगे। और दिस नॉट ओनली फॉर अतुल, हम सबके लिए है वो। आप मतलब जैसे पहले क्लास में एग्जांपल दिया था कि इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट में जमीन आसमान का अंतर होता है। बैटलिंग, या उसको बैटलिंग को अगर ठीक से प्रोनाउंस नहीं करें तो उसका अंतर, प्रोनाउंसिएशन में बहुत अंतर होता है। तो देखिए कम्युनिकेशन का पावर जो है लाइज विद प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ। अगर उच्चारण में कुछ गड़बड़ होगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसका मीनिंग बदल जाता है, और सामने वाला को स्ट्रगल होगा टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आर ट्राइंग टू से। ठीक है, तो उस पर भी हमारा फोकस बना रहना चाहिए। I know I'm dragging this discussion a little too much, but then the idea is कि जो भी हम उच्चारण करते हैं, जो भी वर्ड सीखते हैं, कोशिश करेंगे कि उसमें, जैसे मतलब जूता तो हर कोई खरीद लेता है, पॉलिश करने के बाद ही उसका चमक दिखता है, राइट? पॉलिश करने के बाद ही आप उसको पहन के कोई फंक्शन में जा सकते हैं, है ना? तो जूता भी खरीदेंगे और पॉलिश भी करेंगे, दैट इज द गोल। ठीक है, ओके, चलिए अभी दिस इज नॉट ओनली फॉर अतुल, फॉर ऑल ऑफ अस, ट्रस्ट में। आप लोग देखेंगे कि आप लोग को मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, दिखाता हूँ कि क्या तरीका है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आई विल से वन मोर टाइम एंड आई विल एक्चुअली शो यू गाइस कि कैसे होता है ये चीज, कैसे मतलब हाउ, व्हाट इज दैट आई डू टू नो लर्न अ न्यू वर्ड। अब देखिए, आप लोग स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरा गूगल दिख रहा होगा। यस सर। ओके, मान लिया जाए एक वर्ड लेते हैं बैटल, तो यहाँ पे हम डालेंगे गूगल में मीनिंग ऑफ बैटल। ये नया वर्ड सुनने को आया, नहीं पता ये बैटल क्या होता है। तो बैटल यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, सस्टेन फाइट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड आर्म फोर्सेस, बैटल ऑफ सिलो, कुछ भी जो भी है। इसको अगर आप चाहें इसको हिंदी में बैटल ऑफ, मीनिंग ऑफ बैटल में हिंदी बोले वो भी बता देगा। लेकिन यहाँ पे आकर के ये जो दिख रहा है आप लोग को, माइक, बैटल बैटल बैटल, तो ये जो है इसको यूज करेंगे। अब जैसे अब यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे कोड ही था, कोड, यहाँ पे सी को के एच जैसा प्रोनाउंस करता, ठीक है, टी को टी एच जैसा प्रोनाउंस करता, खुद को खुद, तो ठीक है, खुद तक मत जाइए, कुड भी बोल लेंगे तो चलेगा काम। मेरा कहना यह है कि ये सब जो हमारे सबके हाथ में आज की डेट में मोबाइल डिवाइस है, लैपटॉप है, फोन है, that is not only for watching YouTube videos, that is meant for making good use of the technology for our betterment. तो जो भी हम सीख रहे हैं उसको लेवरेज कीजिए। आप जितने लोग भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, मतलब सबको गूगल मीट ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपके फोन में इंटरनेट है, तो फोन में यूट्यूब, गूगल भी चलेगा, यूट्यूब भी चलेगा। ये जगह पे काफी सारी जानकारी होती है, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू लेवरेज, ताकि आप उसका असर दिखे। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग सब जब अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में जब बात करें, जब when you start talking in English, people should see a difference, they should see something to look up to कि हाँ भाई इसका जो अंग्रेजी है सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। And it doesn't have to be loaded with heavy words, जरूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम शब्द ही यूज करें, बहुत ही पॉलिश्ड, अच्छा उच्चारण, सिंपल भाषा, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। अमरजीत आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आपने हाथ खड़ा किया है, अगर नहीं बोलना चाह रहे तो फिर हाथ नीचे कर सकते हैं। ओके, चलिए कन्हई में अभी बच्चों ने नहीं बोला है, तो कौन बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर, माय वर्ड्स इज एजुकेशन।
माई वर्ड्स इज नहीं, माई वर्ड इज, क्या कि एक वर्ड है तो इज हो जाएगा। My words is education. Education is the light of life. Education is a life shepherd. Education is power. Education is must to all. Education of vaccine for violence. क्या क्या फिर से बोलिए। Education of vaccine for violence. ओके, Education is a way to success. बहुत बढ़िया, हो गया सर, हो बहुत गया सर। बढ़िया। नाम तो बताइए आपका। सुंदरम सर। सुंदरम, ओके। सुंदरम बहुत दिन के बाद क्लास में दिखे हैं, बट गुड। जो बच्चे क्लास में आते हैं दोबारा तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मेरे 2-3-4 बच्चे जो हैं, जो बहुत दिन से हम जिसको हम मिस कर रहे थे, वो लोग वापस आए क्लास में। तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। सो क्रिस, वीर, अंकित और सुंदरम 4 बच्चे हैं जो कुछ दिन से क्लास में नहीं थे, एंड दे आर बैक, सो दैट इज गुड। गुड जॉब। ओके, चलिए। Anybody in the class who has not shared? I think everybody did. तो अब जो है इस क्लास में क्या होता है कि एक घंटे का क्लास होता है, 25-30-40 बच्चे ज्वाइन करते हैं। आज कम ही लोग ज्वाइन किए हैं आज। तो आई नो गणेश चतुर्थी चल रहा है, उसकी वजह से भी छुट्टी बच्चों ने लिया होगा। तो आफ्टर वी शेयर 2 words, व्हाट आई डू इज सबको 2 वर्ड शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप लोग को सिखाते हैं कुछ idioms, क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया ये है कि हम जो सेंटेंसेस हम बोले, हम जो बोलचाल में जो हमारा वर्ड्स का सिलेक्शन और सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो तो पक्का होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो जैसे मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है, दैट इज आल्सो वेरी 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 क्रूशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे कि कुछ पावरफुल चीजें होती, फ्रेजेस होते हैं, जिनको हम इडियम्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको इडियम बोलते हैं। तो हम 1-2 इडियम सुनाते हैं, उससे देन आई आस्क यू गाइस टू मेक सम सेंटेंसेस आउट ऑफ इट ऑन द फ्लाई। तो आज जो है वैसे ही करेंगे हम लोग। लेट्स लुक एट सम इडियम्स। हम इडियम्स सुनाएंगे कुछ, एंड देन उसका मीनिंग बताएंगे, 1-2 सेंटेंस बना के हम सुनाएंगे, एंड देन आई वुड वांट यू गाइस टू आल्सो ट्राई मेकिंग सम सेंटेंसेस। ओके, किसी ने हाथ खड़ा किया है, देखें किसने हाथ खड़ा किया है। सर प्रकाश बोलिए सर। मतलब someone in Delhi said reimbursement, sir, like reimbursement, and someone from Maharashtra said reimbursement. What is the correct, like, मतलब? So reimbursement बोल के देखिए कुछ वर्ड नहीं होता है। reimbursement, देखिए इम्बर्स और रीइम्बर्स। तो री जो है वो रीइम्बर्समेंट बोलेंगे तो दैट विल कम आउट क्लियरली। रिम्बर्समेंट बोलेंगे तो रिम्बर्समेंट, आप स्पेलिंग भी देखें तो रीइम्बर्समेंट होता है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं भी करना हो तो दैट इज ओके, क्योंकि मेरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट गूगल सेज। Like from some Maharashtra they will say reimbursement, and in Delhi someone said like reimbursement. हाँ, so that देखिए देखते हैं गूगल क्या बोलता है, ठीक है? क्योंकि गूगल जो है ये हमारा कॉमन सोर्स ऑफ ट्रुथ होगा। सुनिएगा। तो अगर फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं फॉर 30 seconds, you will see how this whole word is broken. Not every word is one word, okay? मतलब बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं ना, that is made of certain syllables. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए रीइम्बर्समेंट, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? right. देखिए रीइम्बर्समेंट मतलब 4 syllables put together makes this word, okay? देखिए कैसे बोलता है गूगल। रीइम्बर्समेंट, री के बाद रुक जाइए, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर टाइम आल्सो टू प्रोनाउंस इट। रीइम्बर्समेंट बोलेंगे तो ये ई गायब हो जाता है, रिइम्बर्समेंट। तो हम उसको हमेशा कोशिश करेंगे रीइम्बर्समेंट। नॉन स्टॉप, जिसे नॉन और स्टॉप 2 सिलेबल्स मिलकर नॉन स्टॉप बना है, करेक्ट?
कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मिलके बना है, कोऑर्डिनेट। तो गिव योरसेल्फ लिटिल बिट टाइम, उसको तोड़ के बोलेगा तो आई थिंक दैट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट, मोर कंफर्टेबल फॉर पीपल टू फॉलो एज वेल। तो हमेशा वही बोल रहे हैं कि उसका सिलेबस आपको दिखेगा। जब वही बोला ना कि हम लोग YouTube यूज करते हैं वीडियो देखने के लिए, हम भी क्लास का वीडियो डालते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं मैं देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग को जान के आश्चर्य हुआ कि हम YouTube यूज करते हैं अपना घर का काम करने के लिए। मतलब अब घर में नल टूट गया, हम बाहर से मिस्त्री बुलाएंगे यहाँ पे, तो मेरे से $200-300 ले लेगा। हम पता करते हैं भाई कि अच्छा नल का जो टोटी है जो कहाँ कितने मिलता है, बाहर मान लीजिए $25 मिल गया। उसके बाद फिक्स करने के लिए DIY देखते हैं कि भाई हाउ टू फिक्स टैप इन द हाउस, उसमें मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताता है। $200 हमने देखे, $25 मेरा काम हो गया। तो एक नया स्किल भी सीख लिए। तो आज की डेट में आप लोग की जानकारी के लिए, हम पेशे से तो इंजीनियर हैं, शौक से हम टीचर हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और उसके अलावा हम बढ़ई मिस्त्री, राजमिस्त्री, फिर प्लम्बर, गार्डनर, किसान, सब कुछ है, क्योंकि वो सारा काम हम खुद से करते हैं। अभी तो हम कार का मैकेनिक नहीं बन पाए हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा स्किल चाहिए, उसका DIY नहीं चलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज, I saw some videos on Instagram, like someone from like Mithila said that there is no one, the homemade services over there, and they do self. हाँ नहीं, it's there, मतलब सब कुछ है आपको। They do themselves like gardening and everything. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कराने जाऊंगा तो फिर मेरे को किसी के घर में जाके बर्तन धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरा तनख्वाह the cost is like सुपर कॉस्टली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सब जो इंटरनेट है, जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, there's a lot of positive thing around it that we apparently don't tend to use, लेकिन हम लोग उसमें इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। मेरे कॉलेज में जब हम थे इंजीनियरिंग में, तो उस समय पे बहुत लोग लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदा, हमको लगा कि कुछ तो चैंपियन बन जाएगा, उसमें प्रोग्रामिंग करेगा, लेकिन लोग उसमें CD लगा के पिक्चर ही देखते थे खाली। तो हम लोग जो सुविधा है उसका सही इस्तेमाल अगर करें तो उसमें बहुत पावर है एक्चुअली। तो एनीवेज, नॉट हियर फॉर लेक्चर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि गूगल में आपको मिलेगा, जब भी कोई दुविधा हो किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, इवन इफ यू आर श्योर, you would want to pronounce the words in the way it is supposed to be pronounced so that people can understand it. ठीक है, हम लोग का जो अपना भाषा होता है, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, उसका इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश के ऊपर। अब चाइनीज लोग जो अंग्रेजी बोलता है उसका इन्फ्लुएंस होता है इंग्लिश के ऊपर, मतलब इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन उनका वैसा हो जाता है। हम जो हिंदी बोलते हैं उसकी वजह से इंग्लिश पे असर पड़ता है। अपने देश के साउथ के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें उनका साउथ के भाषाओं का असर होता है। बट देन आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, बट देन वी हैव टू स्पीक द लैंग्वेज द वे इट इज सपोज्ड टू बी स्पोकन। अगर हम हिंदी में चाइनीज बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, राइट? तो दैट इज वेयर जो इंग्लिश भी हम प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं या बोलना सीख रहे हैं, तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि वी शुड लर्न इट द ग्लोबल वे, so that people can understand what we are trying to convey, है ना? मतलब हमको 2004 में हम US आए थे, अभी 2025 हो गया। 2004 में मेरा समस्या था ये क्या कि हम किसी अंग्रेज को कुछ बता रहे हैं तो मेरा आधा बात नहीं समझता था, मतलब they'll keep on apologizing for repeating me whatever I said one more time. अभी क्या होता है, थोड़ा अब इतना टाइम हो गया तो नहीं, तो लोग को थोड़ा बहुत, वो लोग भी थोड़ा सीख गया कि हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम भी थोड़ा सीख गए कि वो कैसे समझता है, तो समझाना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। थैंक यू। नो वरीज सर, हम तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम सिखाते तो कुछ है नहीं। सिखाते हैं मैथ वाले क्लास में बच्चों को सिखाते हैं, आप लोग तो क्या मैथ सीखिएगा। ओके, चलिए, तो लेट्स गो टू द इडियम दैट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे। तो एक इडियम है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब क्या है?
जैसा किए हो वैसा भरो, अपने कर्मों का फल भोगना, उसको ऐसा बोल सकते हैं। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको बोलता है कि एक्सपीरियंस द सेम नेगेटिव ट्रीटमेंट यू हैव गिवन टू अदर्स, मतलब जैसा आपने दूसरों के साथ व्यवहार किया था वैसा भोगिए। जैसे बोलते हैं कलयुग है तो कलयुग में होता है, जैसा किया वैसा भरेंगे। तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जैसे मान लिया हम गाली गलौज करके बात करें लोगों से अगर, और हमको कोई गाली गलौज करके बात के हमको बुरा लगता है, तो दैट इज व्हेन इट इज सेड किसी यू कीप ऑन अब्यूजिंग पीपल एंड यू नाउ यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जो तुम करते हो दूसरों के साथ में वही चीज तुम भुगत रहे हो, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, सो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब जैसे उसका सेंटेंसेस, ये इडियम है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मतलब जैसा आप करते हो वैसा आप आज भुगत रहे हो। यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन, मतलब समझिए कोई डॉक्टर ने एक दवाई बनाया और डॉक्टर को उस दवाई का स्वाद खुद से भुगतना पड़ रहा है कि ये तो बड़ा कड़वा दवाई था, पता नहीं कैसे लोग खा देते हैं। सो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, दैट्स अ इडियम। उसको हर एक वर्ड को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इसका यही मतलब होता है कि जो आप दूसरों के साथ करते थे आज आपको वो भुगतना पड़ रहा है। दैट इज व्हाट इट इज। सो नाउ लेट मी फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस विद गेट अ टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन। You have always been making fun of others. Now you are getting the taste of your own medicine. You have not been respectful to your elders. When your kids do the same to you, you are getting the taste of your own medicine. You have not been mindful of others' time. Now you are getting the taste of your own medicine. You don't think about others. Now you are getting the taste of your own medicine. तो यहाँ पे कुछ चीज हिडन है, जैसे you don't respect others' time. Now you are getting the taste of your own medicine. अब आप ये नहीं बोल रहे हैं कि तुमने दूसरे ने समय का महत्व नहीं दिया तो अब दूसरे तुम्हारे समय का महत्व नहीं दे रहा, आप वो नहीं बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि अब आप उसको आप कैसा पता चल रहा है, आपने कभी दूसरों की इज्जत नहीं की, अब कैसा लग रहा है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? सो यू नेवर केयर फॉर वेल बीइंग ऑफ people in your surrounding. Now you are getting the taste of your own medicine. तो ये सभी कुछ उदाहरण था जहां पे आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया। You never studied or you never paid attention to your teachers while teaching. When you yourself are teaching, you are getting the taste of your own medicine. तो अब हम चाहें कि आप लोग भी सोचिए और एक दो सेंटेंस बना के सुनाइए, so that I do not get the taste of my own medicine. No, चलिए, so I'll give you guys 2 minutes time. सोचिए, एक दो सेंटेंस बनाइए और सुनाइए। You might not be accurate, कुछ गलतियां होंगी, गलतियां होने दीजिए, because this class is meant for making mistakes. एक दो मिनट का टाइम दीजिए, सोचिए। I'll just come back in a minute. मैं जस्ट पानी का ग्लास भर के आता हूँ एंड कुछ भी जब लोग रेडी हो जाएंगे, raise your hand and then we'll talk. Just a minute. चलिए, हम गए तो बहुत सारे लोग चले गए मेरे साथ,
ओके, चलिए सोनल बोलिए बेटा. Sir, here are my some sentences using the idiom get a taste of his own medicine. He got a taste of his own medicine when his own business partner cheated him. She bullied her. And while walking, she get a taste of medicine because he fall down. She gave him a taste of his own medicine by giving savage reply. That's all, sir. बहुत बढ़िया, गुड अटेम्प्ट. चलिए और कौन सुना चाहेंगे? Sentences with the idiom taste of your own medicine. Assuming everybody is trying, कोशिश कीजिए, गलतियां होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. So A works in a service center where Y bully in their like minor mistakes. So and then Y left and switched their jobs to another service center, and then they get some Z person or B person like to get their medicine. Okay, I don't think I could understand what you said, sir. फिर से बोलिए. A works in a service center where by bully them or like some minor mistake for some minor mistakes that are negligible, and then why bully them, and why switches their job for another company, and like and then someone Z person like MNOQ person bully Y for some minor mistakes, and then Y get their own taste of medicine. Okay. हाँ, मतलब this was conveying what you wanted to convey. इसको आप थोड़ा short भी कर सकते हैं. You can say when somebody was he always used to bully others for minor mistakes. Now it's his turn to get the taste of his own medicine. Okay. Okay. तो मतलब एक्चुअली इसमें क्या जैसे बोलता ना, अब किए हो तो भरो. That is what exactly it is. If I don't respect somebody, I will get the taste of my own medicine. मतलब कोई मेरे को भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा when I'm expecting to be respected. यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट, अगर मान लिया जाए कि जैसे मैंने सबको कहा कि भाई सुनाइए कुछ सेंटेंस विद द idiom taste of your own medicine, and nobody responded. People can say, now you are getting the taste of your own medicine, because when I was student, maybe I was not paying attention to my teacher. I was not bothering to respond to their questions. So now I'm getting the taste of my own medicine. My students are not also responding to me. Right? तो मतलब वो एक छोटा सा जोक था. Okay, चलिए. Anybody else? Ankit, Priya, do you want to say something with the idiom taste of your own medicine? और अगर नहीं बोल पा रहे अभी तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिएगा. Try struggling with it after the class also.
कि बच्चे ठीक है उसमें नहीं बना पाए, कैसे बन सकता है, व्हाट कुड बी द राइट सेंटेंस, है ना। तो थोड़ा मतलब हम ये एग्जांपल देते हैं हमेशा कि जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग प्रोफेशनल रनर्स हैं, they did not clock the same speed for winning the medal on the day one. पहला दिन में उसका बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा होगा, ताकि 100 मीटर दौड़ने के लिए उनको 25 सेकंड लग गया होगा। अगले दिन थोड़ा और दौड़े, 24 सेकंड में 100 मीटर पूरा किया, और दौड़े और प्रैक्टिस किया, 23 सेकंड पहुंचे, 20 सेकंड पहुंचे, करते करते 9.5 सेकंड पहुंचे और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। राइट, सेम वे इट अप्लाइज फॉर अस आल्सो। You would not do your best when you try something, but then you have to keep on trying, because when you try you will find that your own performance is improving. ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की जीत होती है और मजा भी आता है। मतलब you will see कि आपको ये लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मजेदार तब लगेगा when you actually try. जितना ट्राई करते जाएंगे उतना मजा आते जाएगा, उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, चलिए, विद दैट बीइंग सेड आई विल लेट यू गाइस गो। मिलते हैं अगले क्लास में कल, और कल के लिए टॉपिक क्या रहेगा वो सोचना पड़ेगा। कल हम लोग करते हैं अंताक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी मतलब आई विल गिव यू गाइस वर्ड्स ऑन द फ्लाई, कि चलिए ये 2 वर्ड आपका, ये 2 वर्ड आपका, ये 2 वर्ड आपका, इसका मीनिंग ये है, और एंड देन यू विल थिंक थ्रू इट एंड मेक सेंटेंसेस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को यू विल गेट that small window to think and frame sentences by yourself. ठीक है, और वही होता है कि आप जब कुछ सीखते हैं, कहीं पे, कहीं पार्टी में गए हैं, कहीं कोई फंक्शन में किसी से मिले आप, और देन you hear something and how you use those words, that's what ensures your learning process. ठीक है, तो वही करेंगे कल। अंताक्षरी करते हैं। अंताक्षरी में गाने कोई गाएगा नहीं, लेकिन सबको 2 वर्ड दिया जाएगा। हाँ बोलिए, कन्हैया में सुंदरम क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। My words is always. कहाँ से कहाँ आपका वर्ड? हाँ बोलिए बोलिए। Always speak the truth. Always respect your elders. Always obey your parents. Obey your parents. Always eat healthy food. Always do exercise. हो गया, बढ़िया। तो ठीक है, तो कल करेंगे अंताक्षरी। आज का छुट्टी हो गया हमारा भाई। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और लेट्स ब्रेक आवर हेड विथ न्यू वर्ड्स। ठीक है, और जो भी हम वर्ड बताएंगे, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेंगे। बाय सर। बाय, चलिए बाय बाय। गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड नाइट। ओके, चलिए बाय बाय। बाय। Back it.